Good morning, students. As we have discussed in the last chapter about the supply of money and various suppliers of money, so one point was there that commercial banks do also supply money in the economy. Then the point is, how do the commercial banks supply money for the economy? So this concept will be discussed in this chapter, the chapter number 5, banking. Okay. So as we know that the commercial banks accept the deposits of the people, or people deposit their savings to the commercial banks, and commercial banks has to have to keep a certain reserve that is fixed by the RBI. So after keeping that certain reserve, the excess reserves or the surplus or the remaining funds are to be loaned out by the commercial banks to the general public or the industrial houses. Okay, so this process will be used in money creation. Okay, either you can say it is money creation by commercial banks or the credit creation of the banks. Okay, so we will discuss the working of this process through an example. See, we will be using some terms. One is the reserve requirement, RR. Okay, this will be the minimum reserve requirement which is asked by the RBI to the commercial bank to keep with RBI in the form of cash. Okay, that is the reserve requirement, and that is determined by the RBI. The banks cannot change, or it cannot be fluctuated by the banks according to the requirement. So first one is reserve requirement. Okay, that will be the required reserve, you can also say. ये reserve requirement या required reserve कुछ भी नाम से हम इसको बोल सकते हैं. Next one is the total deposits or the demand deposits, you can say. We have discussed in the last chapter. Deposits, demand deposits or total deposits. Okay. The reserve requirement, the demand deposits, and the next term will be used credit creation or money creation. Okay, so these three terms will be used. So first of all, we'll be taking an example to explain the working of this function, money creation function of the commercial banks. So first of all, we have to assume the total deposits of a bank. So two things we will have to assume. One is the total deposits or the demand deposits with the commercial banks. Say let us assume that the total deposits of the banks are initially, you can say initial deposits or the total deposits as rupees 10,000. Okay, now the second thing is reserve requirement. Okay, the required reserve or the required percentage or the proportion of reserve which is to be kept by the commercial banks, okay, with RBI. Clear? वो रिजर्व्स जो कि कमर्शियल बैंक्स को रखने हैं आरबीआई के पास कैश फॉर्म में, ठीक है, किसका, टोटल डिपॉजिट्स का. ओके, सो उसका एक परसेंटेज हम अज्यूम करेंगे. सो for our own convenience we are taking 10% reserve requirements. So reserve requirements are 10%. Okay, now out of this total deposits, this 10% has to be kept by the commercial banks. Okay, so इस 10,000 का 10% हम कैलकुलेट करेंगे, that will be rupees 1,000. This will be kept by the commercial banks with RBI. Clear? So this 1,000 became the reserve. ओके, रिजर्व में रखा जाएगा आरबीआई के पास. ओके, इसके साथ वो कुछ नहीं कर सकते, ये पैसा यूज नहीं किया जाएगा. ओके, 1,000 रुपीज दे have to keep with RBI. Now a new term we can use or we will use, that will be the excess reserves. Okay, so how much will be the excess reserves and how do we calculate these excess reserves? So excess reserves will be total deposits minus the required or you can say minimum reserves. कुछ भी इनको कह सकते हैं, reserve requirement, required reserve और minimum reserves. Okay, so excess reserves will be 10,000 total deposits हैं. रिक्वायर्ड रिजर्व जो कि 1,000 रुपये उन्होंने, मीन्स 10% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स हमने 1,000 रुपीज़ जो है रिजर्व रिक्वायरमेंट फाइंड आउट की.
सो उस रिजर्व रिक्वायरमेंट को हम डिडक्ट कर देंगे टोटल डिपॉजिट्स में से, तो हमारे पास एक्सेस रिजर्व्स आ जाएंगे. ओके, सो एक्सेस रिजर्व्स आर इन दिस केस रुपीज 9,000. ओके, so these 9,000 will be used by the commercial banks in the form of loans or credits. Okay, clear? So this is called excess reserve. Okay, this excess reserve or this amount. Okay, this is excess reserve. Excess reserve. Okay, so this excess reserve will be used for loans or credit purpose. Okay, or these will be loaned out by the commercial banks to the general public either, or to the industrial houses. Okay, so now what does the bank or a commercial bank do? See, the initial deposits of 10,000 are the financial liability of the bank, because these 10,000 rupees are not of their own. Okay, they have accepted this amount from the general people as their deposits. Okay, so at any point of time the bank has to repay, or the banks have to repay it to the ऑनर्स. ओके, ये 10,000 रुपये बैंक से खुद के नहीं है. ओके, तो उनको किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में वापस तो करने होंगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. ओके, सो दिस 10,000 इज द फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑफ द बैंक, becomes the financial liability of the bank. Okay, so first liability is this 10,000. Okay, now the financial liability term is not of much important here. Now we will use the term deposit. Okay, deposits. Clear? So initial deposit is 10,000. Next, जो 9,000 excess reserves थे, what will the banks do with these excess reserves? These will be used as a loan or credit purpose. Now, how does the bank or how do the banks grant loan to the general public, or say clients or customers, whatever you can say? So those 9,000 rupees will be granted to a customer as a loan or a credit. Okay, but these are not granted in direct cash. No direct cash is given. Okay, a separate account is opened on the name of the customer. Okay, the one who is asking for the credit or applying for the loan. Okay, a separate account, you can say the loan account. Okay, a separate loan account is open, no direct cash is given. Okay, so a separate loan account. So we will be using some terms. So a separate loan account we will use. So first initial 10,000 plus a separate loan account was opened, and the loan amount, that is 9,000. So 9,000 will be credited. Okay, rupees 9,000 will be credited to this separate loan account. Okay, जो customer का loan account है उसमें 9,000 rupees credit कर दिए जाएंगे. Okay, so basically the point is, or the fact is, the bank still holds this and this amount. Okay, हालांकि ये जो 9,000 हैं ये 10,000 में से ही डिराइव्ड हैं. ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो एक्चुअल जो रिजर्व्स हैं कितने होल्ड किए हुए हैं बैंक ने, रुपीज 10,000. ओके, नाउ at this point the bank has credited rupees 9,000 to the customer's loan account. Okay, the bank is still holding rupees 9,000 in the loan account. Okay, so this deposit is called secondary deposit. Secondary deposits. Okay, because this is also held by the commercial bank in the form of cash in a loan account of any of its customers. Okay, so 9,000 is also a part of deposit. Okay, but this will be called as a, or termed as a secondary deposit. Now we have two deposits. One is initial deposits, yeah, you can say primary deposits. Okay, initial or primary deposits you can say, and second one is secondary deposits. So the total deposit will become, the total deposits will be primary deposits PD plus secondary deposits. Okay, that will become the TD or total deposits. Okay, so total deposit is equals to primary deposit 10,000 and secondary deposit rupees 9,000. Okay, 9,000 आया कहाँ से है,
10,000 में से 1,000 रुपीज़ हमने रिजर्व रख दिए हैं, ठीक है। 10% रिजर्व रखना था टोटल डिपॉजिट्स पे, अपनी डिपॉजिट्स का, यू कैन से उस टाइम पे हमारी टोटल डिपॉजिट्स 10,000 ही थी, जो कि इनिशियल या प्राइमरी डिपॉजिट थी। 1,000 रुपीज़ रिजर्व रख लिया गया है। आफ्टर दैट द excess reserve is loaned out to the general public, and this process is performed like this. Okay, so 9,000 is also credited to someone's account but is still held by the bank. Okay, बैंक के पास ही है अभी भी, ठीक है। तो बैंक ने इसको प्राइमरी डिपॉजिट का नाम दिया और इसको सेकेंडरी डिपॉजिट का नाम दिया, ठीक है। तो टोटल डिपॉजिट्स कितने हो गई, या फिर यू कैन से एक दूसरी टर्म जहाँ पे आपने फाइनेंशियल लाइबिलिटी यूज़ किया था, तो टोटल अभी बैंक की फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो है वो कितनी होगी, 10,000। जो डिपॉजिट्स के रूप में एक्सेप्ट किए हैं वो भी लोगों को वापस करने हैं, एंड जो 9,000 किसी के लोन अकाउंट में क्रेडिट किया है, ठीक है, वो भी देना तो है उसी को ही, ठीक है। जब वो लोन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया है, तो उसको पे तो उसको करना है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो दैट हैज़ ऑल्सो बिकम द फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। ओके, सो टोटल लाइबिलिटी या टोटल डिपॉजिट्स दोनों सेम होंगी, प्राइमरी डिपॉजिट्स प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स। सो टोटल डिपॉजिट्स आर रुपीज TD is equals to 10,000 plus 9,000, that is 19,000. Okay, that 19,000 is the total financial liability of the bank, commercial bank at a point of time. ओके, 10,000 डिपॉजिट्स के रूप में उनको एक्सेप्ट किया है, तो लोगों को वापस करना है जब भी, मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स हैं, सो एट वेन एवर दे make demands, that has to be repaid by the bank, and 9,000 is applied in the form of loans, तो ये लोन भी उनको पे करने हैं, ठीक है। तो टोटल 19,000 बैंक को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है या पे करना है, यू कैन से। ओके, सो टोटल फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो है वो 19,000 की क्रिएट हो गई है, एंड इसी तरीके से हमने इसको टोटल डिपॉजिट्स का नाम दिया। हम यहाँ पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी टर्म नहीं यूज़ कर रहे हैं, टोटल डिपॉजिट्स यूज़ करेंगे। नाउ अगेन, if total deposits are there, means deposits are there, again the reserve concept will come into existence. Reserves, the minimum reserves or the required reserves. Okay, this will again be maintained or created by the commercial bank. Okay, that reserve is 10% of the total deposits, and total deposits are 19,000, so reserve amount will be 19,000 into 10%. Okay, 1,900 rupees, 1,900 will be the reserves, okay, which is to be kept by the commercial banks with the RBI, rupees 1,900. How, why 1,900? Because the total deposits are 19,000 in the form of primary deposits plus secondary deposits. Okay, so in 1,900 अब reserve में है. Okay, now after required reserve we will find out the excess reserves. Okay, so excess reserves कैसे हम find out करते हैं? Excess reserves will be, actual reserves, yeah, deposits, sorry, actual deposits minus required reserves. Okay, actual deposits minus required reserves. Okay, that will be called the excess reserves. हम पिछले पॉइंट में भी क्लियर किए हैं इसको. So actual deposits कितने हैं? Actual deposit तो 10,000 ही है, ठीक है। 9,000 सेपरेट डिपॉजिट नहीं आया है, ये 10,000 में से ही किसी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है। इसी 10,000 में से हमने एक्सेस रिजर्व निकाला पीछे 9,000, जो कि लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, और उस 9,000 को हम डायरेक्ट कैश ना दे के बैंक ने क्या किया, कस्टमर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ओके, सो एक्चुअली है तो टोटल 10,000 ही ना, उसी में से 9,000 आया है, ठीक है। तो एक्चुअल डिपॉजिट्स कितना है? एक्चुअल डिपॉजिट्स आर स्टिल 10,000. So 10,000 minus reserve requirement 1,900. Reserve requirement depends on the total deposits. Okay, हम यहाँ पे actual deposits and total deposits दो चीज़ें बात करें. Total deposit primary deposit plus secondary deposit, क्योंकि है तो ये भी deposit ना, किसी के अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, ठीक है। तो किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, तो डिपॉजिट्स की टर्म में ही उसको हम एक्सेप्ट करेंगे कि वो डिपॉजिट्स ही हैं। So 10,000 minus 1,900 हमारे पास excess reserves आ जाएगा, that will be around 8,100 rupees, 8,100. Okay, now this is excess reserve 8,100. तो excess reserves का हम क्या करते हैं? Excess reserves are loaned out, okay, or granted in the form of credit to the general public. So again, this 8,100 is the excess reserve. So excess reserves rupees 8,100 is to be again credited to someone's account or someone's loan account. Okay, so this will be again credited to the loan account. Okay, and this will become, this excess reserve after crediting to someone's loan account will become
secondary deposits. Okay, this will be the secondary deposit. Okay, so now the total deposits will be initial deposits 10,000. Okay, you can bifurcate or you can take it from the last one, 19,000 total deposits. Okay, so you can also take this amount from 19,000 plus 8,100. The secondary total deposits are 19,000. From the last step or the last stage we have calculated 19,000. Next at third step the total deposits will add on or will increase by 8,100. 19,000 plus 8,100, that will become 27,100. Okay, this will be the total reserves in this case, sorry, total deposits. Okay, now we will calculate required reserves again because total deposits have increased. Okay, 27,100 have become 27,100. Now we'll calculate again the required reserves. Okay, so required reserves will be 10% of the total deposits. So the total deposits are 27,100 into 10% of the total deposits, it will become 2,710. So required reserve is rupees 2,710. Okay, so after keeping this reserve, clear, after keeping this reserve out of this total deposits, okay, no, टोटल डिपॉजिट्स में से रिजर्व नहीं रखा गया बिकॉज ये 27,100 एक्चुअल में डिपॉजिट्स नहीं है. ठीक है, ये एक तरीके से इस 10,000 का ही क्रिएशन है. ठीक है, तो एक्चुअल में कितना पैसा है बैंक के पास, एक्चुअल कैश, दैट इज 10,000. ओके, सो ओनली 10,000 आर एक्चुअली हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स. ओके, देन इनको हमने स्टेप बाय स्टेप जब क्रेडिट या लोन के रूप में ग्रांट किया तो हमने इनको अलग अकाउंट में क्रेडिट किया और उनको वो डिपॉजिट के रूप में ही ट्रीट करते हैं बिकॉज दूसरे अकाउंट में क्रेडिट किया गया है. सो क्रेडिटेड अमाउंट, डेबिटेड नहीं है, क्रेडिटेड अमाउंट बैंक जो है डिपॉजिट के रूप में ही ट्रीट कर रहा है. ठीक है, सो दैट ड्यू टू दिस the amount 27,100 has become the total deposits. Okay, so actual, we will take the actual deposits. Okay, so this required reserve will be deducted from the actual reserves to find out the excess reserves. So again at this step excess reserves will be, excess reserves is equals to actual deposits minus required reserves. Okay, so actual deposits are again 10,000. actual deposits will remain same. Okay, initial deposits ही हमारी actual deposits रहेंगी. So actual deposits 10,000 minus required reserve है 2,710. So 10,000 minus 2,710 will become 7,290 rupees. So excess reserve, the surplus. What will the banks do with this excess reserves? Again the process will be followed. The excess reserves will be loaned out. Okay, and this amount will be credited to someone's loan account. Okay, again credit हो जाएगी. ठीक है, and after that this will be treated as a deposit, secondary deposit. Okay, so we will find out the total deposit as 27,100 plus 7,290. Okay, 7,290 will become the total deposit. Again we will calculate the required reserve from 27,100 plus 7,290. इस टोटल का हम 10% निकालेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड रिजर्व आ जाएगा. ओके, सो हर स्टेप पे वी हैव फॉलोड the first step, the required reserves. Okay, we will find out at how many stages we have calculated the required reserves. At the first stage, when the initial deposits were 10,000 and required reserve was 10%, so we found out that the required reserve was 1,000, and with the help of required reserves we have calculated the excess reserve, that was 9,000. Okay, this 9,000 was loaned out by the banks to the general public. So 9,000 also became the deposits, secondary deposits. So we added the secondary deposit to the primary deposit to find out the total deposits. So now total deposits became 19,000, 10,000 plus 9,000. Okay, primary deposits 10,000 थी and secondary deposits हमने 9,000 जो कि loan account से लिया है. ठीक है, so total deposits हमारी 19,000 हो गई. Okay, so at second stage, clear, ये total deposits हैं तो again हमने second stage पे required reserve निकाला
टू फाइंड आउट द एक्सेस रिजर्व। ओके, हर स्टेज पे हम एक्सेस रिजर्व फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वही एक्सेस रिजर्व ही क्रेडिट क्रिएशन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि वही एक्सेस रिजर्व ही लोन आउट हो रहा है, ठीक है, तो वही क्रेडिट है। क्लियर, क्रेडिट का क्रिएशन एक्सेस रिजर्व ही कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर एक्सेस रिजर्व नहीं बचते हैं तो क्रेडिट फर्दर क्रिएट नहीं होगा, दैट इज द पॉइंट ओनली। ओके, सो ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक कि हमारे पास एक्सेस रिजर्व्स नहीं बचते हैं, ठीक है, एक्सेस रिजर्व ज़ीरो हो जाते हैं तब तक नहीं हम इसको मीन्स, या तब तक ये प्रोसेस चलती जाएगी। ओके, सो हमने 3 स्टेप्स जो है परफॉर्म किए हैं। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू परफॉर्म ऑल द स्टेप्स। ओके, you have just some points through 3 और 4 और 5 पॉइंट्स के थ्रू हम एग्जांपल में इसको दिखा सकते हैं, प्रूव करने के लिए कि किस तरीके से मनी क्रिएशन है, क्रेडिट क्रिएशन होता है बैंक्स का। ओके, सो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। ओके, इस तरीके से वो क्रेडिट क्रिएट कर रहे थे। नाउ so this is the all this is the process which is explained in the book. Okay, सारी वही चीज़ें हैं जो इसमें एक्सप्लेन की गई हैं, जो हमने डिस्कस की हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फॉर्मूला फॉर द एस्टिमेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ओके, क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, दैट इज 1/RR रिक्वायर्ड रिजर्व इनटू कैश रिजर्व्स। ओके, 1/RR, ठीक है, 1/RR से 10% था इनटू कैश रिजर्व्स कितने थे, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कैश रिजर्व्स लिए हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, क्रेडिट क्रिएशन का या मनी क्रिएशन का फॉर्मूला है, ठीक है, 1/ रिक्वायर्ड रिजर्व्स इनटू कैश रिजर्व्स, ठीक है, तो कैश रिजर्व्स कितने हैं हमारे पास। ओके, से 10% है तो 10 ओवर ऊपर 100 चला जाएगा, ठीक है, तो टोटल कितने का मनी क्रिएट होगा। ओके, सो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना मनी क्रिएट होगा, तो हमारे पास 10,000 से, ओके, रिजर्व जो थे, इनिशियल रिजर्व्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमारे इनिशियल रिजर्व्स हमने एग्जांपल में 10,000 लिए हैं एंड रिक्वायर्ड रिजर्व का परसेंटेज है 10। ओके, सो कितना मनी क्रिएट कर सकते हैं हम 10,000 से, सो फॉर्मूला पुट करेंगे, मनी क्रिएशन इज इक्वल्स टू मीन कितना मनी बैंक क्रिएट कर सकता है इन 10,000 से, वो निकल जाएगा हमारे पास। सो 1/RR, RR इज 10%। ओके, 10% मीन्स 10/100। ओके, रेसिप्रोकल जाएगा, ऊपर 100 चला जाएगा, इनटू रिजर्व्स, रिजर्व्स कितने हैं 10,000, इनिशियल डिपॉजिट्स हमारे रिजर्व्स हैं। ओके, एंड दैट विल बिकम 1 lakh. Okay, so with this 10,000 rupees of or 10,000 of initial deposits, the commercial bank can create 1 lakh. ओके, इन 10,000 की हेल्प से कमर्शियल बैंक 1 लाख रुपए क्रिएट कर सकता है, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ओके, नाउ इफ इट इज आस्क्ड दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स द bank will create or can create money with the initial deposits। okay, initial deposits की हेल्प से कितनी गुना या कितने टाइम्स क्रिएट कर सकता है, सो डिवाइड कर देंगे हम, 1 lakh इज द मनी क्रिएटेड डिवाइडेड बाय द इनिशियल डिपॉजिट्स दैट इज 10,000, सो 10 टाइम्स इनिशियल डिपॉजिट्स का 10 टाइम्स। ओके, इनिशियल डिपॉजिट्स का 10 टाइम्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायर्ड रिजर्व। ओके, जितना परसेंटेज है रिक्वायर्ड रिजर्व का या मिनिमम रिजर्व का, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि हर बैंक या हर बार 10 टाइम्स ही क्रिएट कर सकता है, नहीं, ये रिक्वायर्ड रिजर्व की परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो हमने कैसे निकाला, फॉर्मूला पुट किया, 1/RR इंटू रिजर्व, कैश रिजर्व, कैश रिजर्व मीन्स जो हमारे इनिशियल डिपॉजिट्स हैं। ओके, सो 1/RR रिक्वायर्ड रिजर्व इंटू कैश डिपॉजिट्स। ओके, दैट विल बी द मनी क्रिएशन, कितना मनी क्रिएट कर सकता है, तो हमने यहाँ पे 1/10%, 10 इंटू 100, ओके, 100/10 कह सकते हैं, इंटू डिपॉजिट्स एड मल्टीप्लाई कर दिए 10,000, सो 1 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे हमारे पास 1 लाख रुपीज़ मैक्सिमम बैंक ने क्रेडिट क्रिएट किया है। ओके, so this formula is become can become the credit creation or credit multiplier. Okay, credit multiplier, that means initial deposits के many you can say many folds या number of times जो है वो बैंक क्रिएट कर सकता है मनी, ठीक है, अपने इनिशियल डिपॉजिट्स का नंबर ऑफ टाइम्स मनी क्रिएट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट फंक्शन। ओके, क्रेडिट फंक्शन की हेल्प से मनी क्रिएट कर रहा है यहाँ पे कमर्शियल बैंक। ओके, मनी क्रिएट मीन मनी सप्लाई कर रहा है वो, ठीक है, लोगों से ही लेके लोगों को दे रहा है, ठीक है, सप्लाई साइड से डिमांड साइड में वो ट्रांसफर कर रहा है, पहुंचा रहा है। ओके, सो के इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। ओके, के इज यूज्ड फॉर और के डिनोट्स क्रेडिट मल्टीप्लायर, के विल बी के इज इक्वल टू 1/RR रिक्वायर्ड रिजर्व, दैट विल बी द क्रेडिट मल्टीप्लायर। ओके, सो हमारे केस में के अगर हम निकालें तो के इज इक्वल टू 10 इंटू 100, बिकॉज रिक्वायर्ड रिजर्व हमारा 10% है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10,
मनी मल्टीप्लायर है, क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना हो गया 10, ओके 10 टाइम्स, ये टाइम्स में ही मेजर किया जाता है, तो कितना गुना क्रिएट हुआ, ठीक है, और टोटल डिपॉजिट सॉरी इनिशियल डिपॉजिट का 10 टाइम्स जो है मनी बैंक ने क्रिएट किया, ओके। So this was the credit creation or the money creation process of the banks. Now the second one is the reserve requirement, okay. So reserve requirement हम पहले भी पढ़े हैं, there are two types of reserve requirements, one is CRR and the other one is SLR. CRR stands for cash reserve ratio and SLR stands for statutory liquidity ratio, okay. सो बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन प्रोपोर्शन, ठीक है, रिजर्व के रूप में या रिजर्व की फॉर्म में रखना होता है, ओके, रिजर्व की फॉर्म में कमर्शियल बैंक्स को रखना है। नाउ CRR इज टू बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश, ओके। ये जो प्रोपोर्शन है, जैसे यहाँ पे 4% दे रखा है, ठीक है, परसेंटेज CRR की 4% है ये, ठीक है, ये वेरी करती है, RBI डिटरमाइन करता है, ठीक है। आज के टाइम में इट इज़ 3%, ओके, CRR इज 3% till date, okay. So today it is 3% of the total deposits, कैश की फॉर्म में किसके पास, आरबीआई के पास रखना होता है अपनी टोटल डिपॉजिट्स का। नेक्स्ट वन इज एसएलआर, ओके, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओके। सो इट इज 18.50% टुडे, ओके, आज की डेट में जो है 18.5% है, क्लियर। अपनी टोटल डिपॉजिट्स का 18.5% जो है उनको लिक्विड एसेट्स मीन्स बॉन्ड्स हैं, गोल्ड हैं, ठीक है, उनकी फॉर्म में रखना होता है, लाइक यू कैन से, जो हम बिजनेस स्टडीज़ में हमने लाइक जो ट्रेजरी बिल्स पढ़े हैं, ठीक है, तो इस तरीके के कुछ बॉन्ड्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, बैंक्स खरीदते हैं, ठीक है, कमर्शियल पेपर्स हैं जो बैंक्स खरीद सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे कुछ बॉन्ड्स हैं प्लस जो गोल्ड है, ठीक है, उस फॉर्म में इनको लिक्विड एसेट्स के रूप में रिजर्व रखना होता है, बिकॉज वो हार्ड कैश तो होता नहीं, वो लिक्विड होता है, ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में एसएलआर उन्होंने रखना पड़ता है, कितना 18.5% ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स का 18.5% लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, एंड 3%, ओके, ये वेरी करता है, ओके, एंड कैश की फॉर्म में उनको 3% आरबीआई के पास। एसएलआर लाइक जो लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रिजर्व है वो कमर्शियल बैंक अपने पास रखेंगे, एंड जो कैश की फॉर्म में है वो आरबीआई के पास इनको मैंडेटरी रखना होता है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट रिजर्व, अ सर्टेन रिजर्व विच इज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश, ओके, एक सर्टेन रिजर्व जो कि कैश की फॉर्म में रखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम सीआरआर एक और रिजर्व बैंक मेंटेन करते हैं, दैट इज known as vault cash reserve, VCR, okay, that is vault cash, VAULT, vault cash reserve, okay, vault cash reserve. uh, this is maintained by commercial banks on their own, okay, और on their own discretion, उनकी मर्जी के ऊपर होता है वो कि कितना कैश अपने पास मेंटेन करके रखना चाहते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द लाइक जनरल एक्सपीरियंस ऑफ द बैंक्स, ओके, कि वो दो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं मेनली, एक डिपॉजिट फंक्शन और दूसरा क्रेडिट फंक्शन, ओके। तो ये जनरल एक्सपीरियंस है कि जिन्होंने डिपॉजिट कराया है सारे के सारे एक दिन नहीं मांगने आएंगे या सारा पैसा एक दिन नहीं निकलवाने आएंगे, ओके। एंड क्रेडिट अगर उन्होंने ग्रांट कर दिया है, लोन एडवांस कर दिया है, ठीक है, तो अगर कोई मांगने आ जाता है सपोज, ठीक है, डिपॉजिट्स मांगते हैं, ठीक है, तो बैंक और there may be a time gap or time difference between the recovery of loans and the repayment of deposits, okay, recovery of loans और repayment of deposits के बीच में time gap हो सकता है, मतलब आपको recover होना है लोन, ठीक है, 2 महीने में आफ्टर 2 मंथ्स, बट आपका जो रीपेमेंट आ रहा है, सपोज एफडी का है, मेच्योरिटी है या आरडी की मेच्योरिटी है, ठीक है, तो आफ्टर मेच्योरिटी हम अज्यूम करेंगे कि वापस ले ही लेंगे लोग, कस्टमर्स जो है निकाल लेंगे, ओके, दैट इज आफ्टर 1 मंथ, ओके, तो 1 मंथ का गैप है, लोन्स की रिकवरी तो 2 मंथ बाद होने वाले, लेकिन आपको कस्टमर्स को पे 1 मंथ बाद करना है उनकी एफडी का, ठीक है, तो 1 मंथ तक आप उनको मतलब मना तो नहीं कर सकते डिमांड डिपॉजिट्स का या फिक्स डिपॉजिट्स का, जो भी है टर्म डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स उनका पैसा है, बैंक मना नहीं कर सकता उनको वापस देने के लिए, ठीक है। तो ये जो टाइम गैप है उसको कैसे मैनेज करेगा, इस मैनेजमेंट के लिए ही बैंक्स जो है कुछ कैश अपने पास मेंटेन करके रखते हैं, ओके, दैट इज नोन एज वॉल्ट कैश रिजर्व, ओके। आरबीआई के पास तो मैंडेटरी है, ठीक है, दैट इज कंपल्सरी which is to be kept by the commercial banks with RBI, okay, but ये जो ये रिजर्व है ये बैंक्स अपनी डिस्क्रेशन अपनी मर्जी से रखते हैं अपने पास कैश की फॉर्म में, ओके, और ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, क्लियर। सीआरआर वेरी नहीं करता है, बट जो वीसीआर है वोल्ट कैश रिजर्व है ये वेरी करता है। सो टोटल हमारे पास कैश रिजर्व दो तरीके, कैश की फॉर्म में जो रिजर्व रखने हैं कैश रिजर्व वो दो हैं, एक तो
CRR है एंड एक VCR है, वॉल्ट कैश रिजर्व, CRR एंड वॉल्ट कैश रिजर्व, ओके। एंड अदर वन इज SLR, ओके। हालांकि जो लीगल रिजर्व रेशियोज हम पढ़ते हैं तो लीगल रिजर्व रेशियोज हमारे पास दो तरह के हैं, CRR और SLR। VCR लीगल रिजर्व रेशियो नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट कंपलसरी, ओके। वो बैंक्स की डिस्क्रेशन के ऊपर है कि वो रखते हैं, कितना रखते हैं, नहीं रखते हैं, ओके। सो इस तरह की रिजर्व रिक्वायरमेंट्स उनको अपनी टोटल डिपॉजिट्स में से अपने पास रखनी होती है, ओके। सो हम मनी मल्टीप्लायर पढ़े थे के, सो के इज इक्वल टू 1 रिजर्व रिक्वायरमेंट, ओके। ये आर क्या है, तो इस आर में हम क्या इंक्लूड करेंगे, वही कैश रिजर्व ही इंक्लूड करेंगे, जो मीन्स वो रिजर्व इंक्लूड करेंगे जो कैश की फॉर्म में रखे हैं। तो कैश की फॉर्म में दो ही रिजर्व रखे हैं, एक तो CRR और एक VCR, ओके। सो के इज इक्वल टू, के कैन बी 1/RR, instead of 1/RR it can be written as 1/CRR plus 1/VCR, okay, cash reserve ratio plus vault cash reserve, okay. Now VCR is highly volatile, it is volatile, its amount is not fixed, okay, इसकी अमाउंट जो है वो फिक्स नहीं है, बैंक्स टू बैंक्स वेरी करती है, ठीक है। तो ये नहीं रखा जा सकता है, हम नहीं ऐड कर सकते कि VCR की रेट क्या है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। 10% रखा जाएगा, 5% टोटल डिपॉजिट्स का रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि तो बैंक्स के डिस्क्रेशन के ऊपर है, बैंक्स की मर्जी के ऊपर है, ठीक है। कोई नहीं भी रख रहा है, हालांकि रखते हैं बट वेरी करता है, ठीक है। तो VCR यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे, ओके, ओनली CRR। सो रिक्वायर्ड रिजर्व में हम सिर्फ CRR को ही इंक्लूड करते हैं। सो K इज इक्वल्स टू 1/RR और यू कैन से 1/CRR, दैट विल बी द मनी मल्टीप्लायर, ओके।